time rate method, A. Time rate method, B. Halsey plan, C. Rowan plan. Rowan plan. Information given है standard time 30 hours, time taken 20 hours, time taken 20 hours, hourly rate of wages, hourly rate of wages is rupee 1 per hour, is rupee 1 per hour, plus a dearness allowance, plus a dearness allowance at the rate 50 paise per hour work, at the rate 50 paise per hour work. Solution, down solution here you have given the problem regarding to calculate time break method, to calculate earnings of worker by using time break method, Halsey plan and one plan. In this problem, you have provided the information regarding standard time 30 hours, time taken 20 hours, hourly rate of wages is rupees 1 per hour. Madam. Hourly rate of wages is rupees 1 per hour plus a dearness allowance at the rate 50 paise per hour. And we have asked to calculate time break method. So, according to time rate method, we can calculate earnings of wages by using this formula. Write down, write down this formula. Time rate method. Wages is equal to time taken into rate per hour. Wages is equal to time taken into rate per hour. As given in the information, here is the information given regarding the time taken. The worker has been taken 20 hours for work. So we'll take here 20, time taken 20. The hourly rate of wages is rupee 1 per hour. That's why we multiply it by 1, 20 into 1. We'll get 20 as a wages. But in this problem, you have given another information regarding hourly rate of wages and plus a dearness allowance at the rate 50 paise per hour work. Dearness allowance देना है आपको 50 पैसे पर हावर वर्क. तो वर्कर ने कितना काम किया है यहाँ पर 20 hours. It means that we can take here dearness allowance for 20 hours and hourly rate is given as per the information is a 50 paise. So we have multiplied it 20 into 0.50 per hour and then we'll get a 10. Okay, that's why we have will obtain the total wages of worker according to the time rate method is 30. Okay. Hello. Hello. Yes, sir. Sir. Got it? How to calculate this wages by using time rate method? Yes, sir. Understand it? Look at here once again. I repeat. Here we have asked to calculate wages of worker on the basis of time rate method, and that's why we use this formula for calculating wages time taken into rate per hour, because in time rate method we consider time taken by the worker for finishing goods.
So here, worker has taken 20 hours for work and hourly rate is 1. That's why we have calculated here a 20 as a wages, and also adding some dearness allowance, which we have given in the information. Uh, Workers will get the dearness allowance at the rate 50 पैसे per hour. That's why we have used here 20 hours तो उसने वर्क किया था, एंड यहाँ पर उसको पर हावर के लिए 0.50 पर हावर वहाँ पर उसको डियरनेस अलाउंस देना था। इसके लिए हमने इसे कैलकुलेट किया और इसमें वेजेस में ऐड किया, तो हमें मिला टोटल वेजेस ऑफ वर्कर दैट इज 30। ओके, so move to the next calculation. In this problem we have asked to calculate the earning of workers according to the Halsey plan also. So right here under Halsey plan, write formula of Halsey plan. Wages is equal to, what is the formula for calculating wages under Halsey plan? What is the formula? Formula is in front of you here on the screen. Wages is equal to time taken into rate per hour plus standard time minus time taken upon 2 into rate per hour. This is the formula for calculation of wages under Halsey plan. Okay, have you write it? हेलो, लिखा है क्या आपने? यस सर। फॉर्मूला लिखा? यस सर। ओके, कितने स्टूडेंट से हमारे इस क्लास पर वो देख लेता हूँ कितने हैं। तो सभी ने यहाँ पर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। सो वी हैव राइट हियर फॉर्मूला wages is equal to time taken into rate per hour. Look at the problem. Time taken कितना है अपना? Time taken है 20 hours. Okay. So rate per hour तो हमने पहले ही देखा कि rate per hour है हमारा 1, प्लस हमें क्या करना है स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम कितना गिवन है प्रॉब्लम में, देखो 30 hours. So we have used here 30 minus टाइम टेकन। टाइम टेकन भी गिवन है यहाँ पर 20, तो 10 लिया और इसे डिवाइड किया बाय 2 से, देन वी हैव आल्सो मल्टीप्लाइड इट बाय 1। व्हेन वी कैलकुलेट this 20 into 1, it means we'll get a 20 plus 30 minus 20 means 10 upon 2, it means it is 5. 5 into 1, it means it will get a 5. It means that we'll get a 20 plus 5 is equal to 25. Hello? 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 यस सर। हाँ, whether you have write it or not, लिखा है क्या आपने? यस सर। Okay. Do you understand it? यस सर। Can somebody explain it for me? Mahesh, are you there? No. Hello, Mahesh. Hello. Can someone explain it? How we have got the figure of 25? Hello. I want some answers from you. Okay. Mahesh, can you explain it? Hello, Mahesh. Somebody else? श्रद्धा, श्रद्धा देखने, उर्मिला, राउत, पूर्ति, कौन एक्सप्लेन करेगा थोड़ा सा? यस सर। क्या कोई एक्सप्लेन कर सकता है कैसे कैलकुलेट किया हमने? सर मैं करूँ क्या? हाँ, ओके ओके, करो बेटा। सर हालसे प्लान का फॉर्मूला है वेजेस इज इक्वल टू टाइम टेकन
into rate per hour हाँ plus standard time minus सर मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, यस यस, यू आर ऑडिबल। ओके सर। स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन डिवाइड बाय 2 इंटू रेट पर आवर। तो टाइम टेकन हमारे पास है 20 और रेट पर आवर है 1, तो 20 इंटू 1 प्लस स्टैंडर्ड टाइम है 30 और टाइम टेकन है 20, तो 30 माइनस 20 और जैसे फॉर्मूले में दिया है डिवाइड बाय 2 और इंटू रेट पर आवर है 1, तो 20 इंटू 1 20 प्लस 30 minus 20 divided by 2, 10 upon 2 into 1, that means 20 plus 5 is equal to 25. Yes. And also we have added here a 10. How we'll get this figure? How we have got this figure? 10. Hello. डेयरनेस अलाउंस गिवन है यहाँ पर। कितना है डेयरनेस अलाउंस का रेट? हाँ 50 है पर हावर के लिए, और हमारा एक्चुअल हावर्स वर्क 20 हावर्स, तो ये 10 आया। तो टोटल वेजेस कितना हुआ अकॉर्डिंग टू द एलसी प्लान? इट इज 35, है ना। 25 प्लस डियरनेस अलाउंस 10 is equal to will get a figure of total wages of worker under Halsey plan. How much it is? 35. Okay, so move to the next one, that is a row 1 plan. Here is the formula for calculating wages under a row 1 plan is a wages is equal to time taken into rate per hour plus standard time minus time taken upon standard time into time taken into rate per hour. So according to the given information, time taken is a 20, rate per hour is 1 plus standard time given is a 30 minus time taken is a 20 upon standard time 30 into time taken 20 into rate per hour, that is 1. So we have right here 20 into 1 plus 30 minus 20 upon 30 into 20 into 1. So calculate it. The first part calculation is 20 into 1, that is 20. After that we have calculated 30 minus 20 is equal to कितना आता है बेटा? 30 minus 20 10 upon 30. ओके, 10 upon 30 करने के बाद में जो आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई करो 20 से, तो विल गेट 6.67. After adding this bonus, we'll get a total wages according to the row 1 plan for worker. So there is a 26.67. 20 is guaranteed salary, and 6.67 is a bonus for saving time. And the worker will get the total wages, just wages and not the earnings allowance, 26.67. Have you calculated it? आपने कैलकुलेट किया क्या? ये देखो, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो? यस सर। प्रॉब्लम है या अंडरस्टैंड हुआ कैसे कैलकुलेट किया है? हेलो, आई एम आस्किंग यू. हेलो. लाइक लास्ट फॉर्मूला फिर से बताइए ना सर। हाँ यस बेटा. हेलो हेलो, आप बोलो ना, कौन बोल रहा था? बोलो सर, वो बोल रही है, फिर से बताओ। फिर से एक बार बताने को? ओके ठीक है, चलेगा. रो 1 प्लान में हम फॉर्मूला यूज करते हैं वेजेस इज इक्वल टू टाइम टेकन इनटू रेट पर हावर प्लस स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम टेकन इनटू रेट. तो हमें इंफॉर्मेशन कौन सी चाहिए? टाइम टेकन कितना है? टाइम टेकन है हमारा 20 एज वी हैव यूज्ड इट इनटू द हल्से प्लान इनटू 1, तो वो 20 इंटू 1 हो गया 20
प्लस ये जो आगे का जो पार्ट है वो है बोनस का, वो हमारा जो फॉर्मूला है आगे का वो कितना है, टाइम सेविंग कितना किया है उसने और रेट कितना है उसके बारे में। तो टाइम सेव किया था उसने 10 आवर्स अपॉन 30, तो वो कैलकुलेशन हुआ और बाद में उसे मल्टीप्लाई किया 20 से, तो वो आ जाता है 6.67। तो यहाँ पर हमने 20 में 6.67 ऐड कर दिया, तो हमको मिला 26.67। ओके, and after adding a dearness allowance in it, we'll get a total wages according to the row 1 plan with the help of given information. So here we have got a 36.67 as a total wages. Okay, do you understand it? Do you understand it? समझ में आया क्या? किसी को दिक्कत है कोई? नहीं है तो हम आगे जाएंगे और दूसरा प्रॉब्लम ले लेंगे। ओके, हेलो बोलो, कोई तो भी बोलो, आपको आंसर करना समझ में आया है, सर। फीडबैक देना है। ओके, समझ में आया सर। हेलो, तो आगे प्रॉब्लम देना है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। यस सर। यस सर। यस सर। फ्रेश प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 7। During 1 week, the workman X manufactured 200 articles. 200 articles. He receives wage for guaranteed 44-hour week. 44-hour week at the rate of rupees 15 per hour. At the rate of rupees 15 per hour. The estimated time to produce one article is 15 minutes. 15 minutes. And under incentive scheme, the time allowed is 20%. 20%. Calculate his gross wages. Under हेलो, हम बोल बरोबर चल, लेक्चर चालू आहे, नंतर कॉल करत परत। हा, so where we stand, incentive scheme, the time allowed is increased by 20%. Calculate his gross wages under each of the following methods of remuneration. First, time rate. Second, piecework with guaranteed weekly wage. Row 1 premium bonus. Wholesale premium bonus 50% workman. So look at the problem once again. Here you have given the information regarding the X manufacturer who produces 200 articles within during a 1 week period. Okay, he receives wage for guaranteed 44 hours. It means that he received 44 hours time taken by him at the rate of rupees 15 per hour। 15 per hour के हिसाब से उसको मिलता है। The estimated time to produce one article is 15 minutes. It means that the standard time for one article is 15 minutes,
and under incentive scheme the time allowed is increased by 20%. It means that the time for Halsey and Rowan plan, as we know that incentive scheme include Halsey and Rowan plan. These are the some incentive scheme. So in incentive scheme, the standard time increased by 20%. It means that we'll calculate it with the help of estimate time produced one article is 15 minutes, and on the basis of 15 minutes we can calculate 20% on 15 minutes. Okay, तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है wages or remuneration of worker under time rate, piece work with guaranteed weekly wage और one premium bonus. तो देखो यहाँ पर गिवन इंफॉर्मेशन से हमें पहले तो वर्किंग्स कैलकुलेट करना है कि कितना टाइम रेट गिवन है, वो तो हमारे पास है, यहाँ पर गिवन है 15 पर हावर. ओके, टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन आर्टिकल, बिकॉज यहाँ पर आपको दिया है कि आर्टिकल्स कितना टाइम लगता है एक आर्टिकल प्रोड्यूस करने के लिए, 15 मिनट्स. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक आर्टिकल अगर हम 15 मिनट्स में बनाते हैं, तो अगर हमें उसे हावर्स में कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक हावर्स में कितने आर्टिकल होते हैं. तो अगर 50 मिनट्स का एक है तो 60 मिनट में कितना होगा, तो 60 अपॉन 15 कर दे तो हमें मिलेगा वहां पर 4 आर्टिकल्स एक हावर्स में हो सकते हैं. ओके, आर्टिकल टू बी प्रोड्यूस इन हावर दैट इज 4 आर्टिकल्स. और पीस रेट पर आर्टिकल कितना है पर हावर, 15 है. तो अगर हम पर हावर 15 है तो हमें पर यूनिट निकालना है वहां पर. तो हमें क्या करना होगा, 15 जो है उसको 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना. रेट है हमारा गिवन 15, तो 15 तो एक घंटे के लिए, एक घंटे में हम 4 यूनिट बनाते हैं, तो 15 अपॉन 4 किया तो हमें मिल जाएगा पीस रेट पर आर्टिकल और पर unit, that is 3.75. okay okay then we also require time required to produce one article under incentive scheme as given in this problem. As given information says that 20% increase है ना, standard time will be 20% increase in incentive scheme. incentive scheme का हम जब यूज करते हैं तो वहां पर टाइम इंक्रीज होता है 20% से. तो एस्टिमेटेड टाइम है हमारे वन आर्टिकल के लिए 15%. तो हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम होगा हल्से और ड्रोन प्लान के लिए वो कितना होगा, 15 प्लस 20% ऑफ 15 मिनट्स, दैट इज 3 मिनट्स, है ना. अगर हमारा 15 है तो 15 का 20% निकालो, 15 इंटू 20 अपॉन 100. हेलो, 15 इंटू 20 अपॉन 100 कर दिए तो आपको मिलेगा 3. तो हम उसे एस्टिमेटेड टाइम में मिला देंगे. एस्टिमेटेड टाइम था हमारा 50 और 20% अगर उसे बढ़ाया तो वो आ जाएगा हमारा 18 मिनट्स. ओके, अंडर इंसेंटिव प्लान्स. So we also required how many hours will required for 200 articles, because we have calculated here कि हल्से और रोहन का जो प्लान है उसके लिए एस्टिमेटेड टाइम है 18 मिनट्स फॉर पर यूनिट. 18 मिनट्स अगर पर यूनिट के लिए लगते हैं तो 200 यूनिट के लिए कितना लगेगा. तो हम क्या करेंगे, 200 इंटू 18, तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60. तो हमको मिल जाएगा एस्टिमेटेड टाइम फॉर 200 आर्टिकल्स इज 60 आवर्स. ओके, हेलो, क्या आपके समझ में आ रहा है? यस सर. हाँ, ओके. तो गिवन है आपको एक्चुअल टाइम भी कैलकुलेट देखना है आपको कितना है, क्योंकि हमें तो ये सब इंफॉर्मेशन हमारे फॉर्मूला में यूज करनी है. तो एक्चुअल टाइम टेकन कितना है फॉर प्रोड्यूसिंग 200 आर्टिकल्स, यहाँ पर गिवन है. देखो, he receives a wage for guaranteed 44 hours week at a rate of, तो 44 hours जो है तो उसने एक्चुअल टाइम टेकन है उसका और 200 वर्क आर्टिकल्स. बिकॉज हियर you have given the information regarding 1 week, है ना. he produces 200 articles.
है ना, and he gets a 44 hours guaranteed wage. It means that we can pay a guaranteed wage on the basis of time taken. That's why the time taken for workman X is 44 hours. Okay, so calculate all the uh, calculate wages on the basis of each method. So right here under time rate method. Under time rate method. अंडर टाइम रेट मेथड टाइम ही कंसिडर किया जाता है टाइम रेट मेथड के अकॉर्डिंग. तो टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन इनटू रेट पर हावर, ये उसका फॉर्मूला है. गिवन प्रॉब्लम में हमें टाइम टेकन कितना है बेटा, हेलो, टाइम टेकन कितना है, हेलो, आई वांट आंसर्स फ्रॉम यू. हेलो, टाइम टेकन कितना है यहाँ पर, as we have produces 200 articles in 44 hours. तो यहाँ पर 44 hours दिया है और rate per hour कितना है 15. So these two factors will consider in time rate method, time taken and rate per hour. We'll get wages under time rate method. तो हमने time taken था x के लिए 44 hours and rate per hour था 15. तो हमें मिला 660. Okay, according to under time rate method, the workman X will get the wages of rupees 660. अब देखो यहाँ पर एक कैलकुलेशन है कि कैलकुलेशन करो बेटा, मैं तो किया नहीं था वहां पर, ये गलत है. हाँ, तो अंडर पीस रेट मेथड में हम किसका यूज करते हैं, यूनिट प्रोड्यूस्ड, है ना, कितने यूनिट प्रोड्यूस किए और रेट पर यूनिट क्या है. हमने दोनों इंफॉर्मेशन हमारे पास है. यूनिट कितने प्रोड्यूस किए हैं 1 वीक के अंदर, हेलो, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, यू हैव इंफॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ यू. टेल मी हाउ मेनी produced by X worker, 200 सर. 200. रेट कितना कैलकुलेट किया हमने वहां पर, 200. नहीं यार, रेट पीस रेट पर आर्टिकल मैं बोल रहा हूँ 3.75 है ना. तो यहाँ पर 200 को मल्टीप्लाई करते 3.75 से. 2.75. 7. हेलो, 3.75. आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा. 750. 750 किसे 750. 750 आता है, देखो Yes, sir. डेफिनेटली आता है Yes, ना. sir. Yes sir. हाँ. Sir. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Okay, right. So take a new formula under row 1 plan. row 1 plan में देखो क्या है, टाइम टेकन 44, रेट 15 है, प्लस स्टैंडर्ड टाइम कितना है, फॉर्मूला देखो, स्टैंडर्ड टाइम 60 है, हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पर स्टैंडर्ड टाइम भी 60 आवर्स फॉर 200 आर्टिकल्स, है ना. इंसेंटिव स्कीम में एस्टिमेटेड टाइम बढ़ रहा है 20% से, तो ये हो रहा है 18 मिनट्स. तो 60 आवर्स आए हैं, तो 60 आवर्स माइनस 44 अपॉन 60 इंटू 44 इंटू 15, 44 इंटू 15. तो 44 इंटू 15 करो पहले बेटा, 44 इंटू 15 विल गेट 660. यहाँ पर रेट पर यूनिट और रेट पर हावर में कंफ्यूज मत होना, ये रेट पर हावर है. हाँ, Yes. रेट पर हावर.
जब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो हम जो रेट यूज करते हैं वो रेट पर आवर है। रेट पर यूनिट वही यूज करते हैं हम जहाँ पर पीस रेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये भी रेट पर आवर है। $44 into 15 will get 660. After that, we'll calculate 60 minus 44 upon 60 कितना आता है देखो, और उसके बाद में उसे मल्टीप्लाई करो 60 से। कितना आता है देखो, हेलो देखो बराबर आता है क्या 176। कैलकुलेट करो बेटा, बताओ क्या 44 to 15 आता है 660। आगे देखो ये कितना है 60 माइनस 44 का Yes, मतलब sir. वो आता है 16 अपॉन 60 करो। 16 अपॉन 16 करने के 60 करने के बाद जो आएगा उसे मल्टीप्लाई करो 660 से, है ना, क्योंकि 44 इंटू 15 कितना आने वाला है 660, तो आ जाएगा आपका 176। आता है क्या देखो सभी का? Yes, sir. यस सर। इसे मिलाने के बाद में हमें कितना मिलेगा 836 according to the under row 1 plan, according to the row 1 plan। ओके, अगर ये समझ में आया है तो आगे चलो। आगे हल से प्लान है। हल से प्लान का फॉर्मूला लिखो, टाइम टेकन इनटू रेट पर हावर प्लस स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन अपॉन स्टैंडर्ड टाइम। यहाँ पर देखो हल से प्रीमियम में 50% था, इसलिए हमने 2 से डिवाइड किया है उसे, है ना। हल से को हल से प्लान में देखो, हल से तो आपने कैलकुलेट करा, हाँ हल से कैलकुलेट कर रहे हैं, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 50% दिया है तो स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन अपॉन 2, ये फॉर्मूला यूज करना है वहाँ पर। टाइम टेकन इंटू रेट प्लस स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन अपॉन 2 इंटू रेट। रेट क्या होगा पर हावर, नॉट पर यूनिट। ओके, राइट फॉर्मूला। फर्स्ट पार्ट तो इतना ही आएगा 660 प्लस उसमें क्या करना है आप 16/2, क्योंकि 16/2 क्यों लिखा है मैंने यहाँ पर। स्टैंडर्ड टाइम कितना है अपना, स्टैंडर्ड टाइम 60 आवर्स है, टाइम टेकन 44 है, इसलिए उसका जो बचा हुआ है सेविंग टाइम कितना है 16 है अपॉन 2 किया तो आ जाएगा 8, और 8 को मल्टीप्लाई किया 15 से तो आ जाएगा 120, और हमें मिलेगा टोटल वेजेस 780। हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। तो कोई आप में से कोई एक्सप्लेन करेगा ये कैसे किया है हमने? अंडर हल से प्लान एक्सप्लेन करो, एक और एक रोवन प्लान एक्सप्लेन करो। कौन करता है रोवन प्लान पहले? इट्स वेरी सिंपल बिकॉज ऑल द things in your on the screen in your in your front, है ना, आपके सामने है, in front of you। कौन करता है देखो, चलो जल्दी जल्दी, या रिपीट करो इसे। रिपीट करने की जरूरत है? रिपीट करने की जरूरत है क्या? Sir, can you repeat? हाँ,
तो देखो हलसे प्लान में सॉरी कौन सा प्लान रिपीट करूं, रोवन या हलसे या दोनों? कौन सर? 176 कैसा है सर वो? कौन सा? वन, हेलो, 176। 176। देखो बेटा यहाँ पर हमारा ये कितना है, 60 माइनस 44। 60 माइनस 44, 60 क्या है, स्टैंडर्ड टाइम है हमारा जो हमने वर्किंग्स में कैलकुलेट किया है। जो हमारा 200 आर्टिकल्स होने वाले हैं वो कितने आवर्स में होने वाले हैं, होने चाहिए 60 आवर्स में, लेकिन एक्चुअली वो कितने आवर्स में हुआ, 44 आवर्स में। तो वहाँ पर स्टैंडर्ड टाइम था 60, 44 में हुआ, इसका मतलब 60 माइनस 44 ये हुआ हमारा सेविंग टाइम। तो ये हुआ 16। 16 को हमने डिवाइड किया 60 से। बोलो 60 को 16 को 16 को 60 से डिवाइड करो, कितना आता है देखो। 3.76 है। 0.266 आता है बेटा, 0.266। किसका? ये जो 16 है, 16 अपॉन 60 किया तो कितना आएगा, 0.266। उसे अगर हमने मल्टीप्लाई किया, इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा 44 इंटू 15 का, वो कितना आता है, 660 आएगा, है ना। तो 660 से मल्टीप्लाई करो उसे, तो आ जाता है हमारा 176। ओके, गॉट इट? यस सर। Okay. Any other problems? Any other things? इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स है, क्वेरीज है? If you have any query, you can ask me. अगर आपके समझ में आया है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आया है तो बोलो, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। आया है ना समझ में? यस सर। ओके, ठीक चलेगा। तो यहाँ पर आज के लिए हम रुक जाते हैं, क्योंकि दोनों प्रॉब्लम हमारे आज क्लियर हो गए। ओके, यस you सर। want to take, you can take. I will repeat all the problems. देखो पहला प्रॉब्लम है, उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, यहाँ पर ले सकते हो। होने के बाद में बोलो, चलो। हुआ? यस सर। आप सॉल्यूशन ले लो उसका, ये फर्स्ट पार्ट है सॉल्यूशन का। ले लो नेक्स्ट। यस सर। यस सर। ये फाइनल पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन का। यस सर। देखिए आगे का प्रॉब्लम है 7, प्रॉब्लम नंबर 7। यस सर। लिखना है, हाँ ले लिया। यस सर। ये सॉल्यूशन का पार्ट, ये वर्किंग्स देखो ध्यान से ले लो, अच्छा ले लो उसका। उसके बाद में हम देखेंगे पीस रेट सिस्टम, टाइम रेट सिस्टम। देखो अब आगे है, ये पार्ट है हमारा कैलकुलेशन ऑफ वेजेस का। ये दो मेथड है, बाद में तीसरा और चौथा मेथड है। ये तीसरा और चौथा मेथड। ओके, यस सर। स्टॉप शेयरिंग, यस सर। लेफ्ट लेफ्ट हो सकते हो। अटेंडेंस दिया है ना, हाँ सर। तो यू कैन लेफ्ट।
स्टॉप करतो.